So now when you are going to start public administration, first and foremost important thing that you should know, what is leadership? Because in administration, when you go as a civil servant, as an officer of the state, you have to act like a leader. तो सबसे पहले तो आज आपको समझना है कि नेतृत्व क्या है। प्रशासन के क्षेत्र में जब आप सिविल सेवा में या एक अधिकारी के तौर पर जाएंगे तो बहुत समय आपको नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी। You have been hearing this term for quite some time. Leadership is bad, leadership is good, there is no leadership, there is a problem of leadership, Congress is suffering from the crisis of leadership. यानी नेतृत्व या नेता के विषय में आप सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। ये शब्द आपके लिए नया नहीं है, अपरिचित नहीं है। नेतृत्व अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, ये नेतृत्व की कमी है, ये तो नेतृत्व का ही गुण था कि ऐसा हो गया। तो ये नेतृत्व या नेता, लीडर किसे कहते हैं, कौन होता है, क्या परिभाषा है? एज अ लेमैन इफ आई आस्क यू what do you mean by leadership and who is a leader, what will be your answer? तो आपका उत्तर क्या होगा? When we use or pronounce the term leader, there emerges an image, a picture in our mind of a man clad in white dhoti kurta, wearing Gandhi cap, and usually we assume that leader is someone who is associated with politics or politicians are leaders. No, it is wrong. यानी अब तक हम ये जो जानते, समझते, पढ़ते आए कि नेता का मतलब एक व्यक्ति जो खादी का कुर्ता पैजामा पहने हो, सफ़ेद गांधी की टोपी गांधी जी वाली लगाए हो, वो नेता है। नहीं है, ऐसा नहीं। Who is a leader then? Anyone who has the ability to influence behavior of others voluntarily. Anyone who has the ability to influence behavior of others voluntarily so as to realize a particular goal in a given situation. एक दी गई परिस्थिति में जो स्वेच्छा से दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, उसे नेता कहते हैं और वह गुण नेतृत्व कहलाता है। तो नेतृत्व के लिए कम से कम दो चीजों का होना, दो व्यक्तियों का होना, दो लोगों का होना आवश्यक है। एक वह व्यक्ति जो व्यवहार को प्रभावित करे यानी नेता, और दूसरा वह व्यक्ति जिसका व्यवहार प्रभावित हो यानी अनुयायी। So leadership needs minimum two individuals. One who influences the behavior, that is leader, and whose behavior is getting influenced, that is follower. Meaning thereby, in a mathematical equation, we can say that leadership is the function of leader, follower, goal and situation. गणितीय रूप से एक समीकरण में अगर हम सूत्र बताएं तो कहेंगे कि नेतृत्व कार्यात्मक संबंध है नेता, अनुयायी, उद्देश्य और परिस्थिति के बीच। मीनिंग thereby anyone can be a leader for that person whose behavior is getting influenced, and therefore the person who is influencing the behavior is a leader and whose behavior is being influenced is a follower. So Lord Ram is a leader, Jesus Christ is a leader, Muhammad Sahab is a leader, Sachin Tendulkar is a leader, M.F. Hussain is a leader, Dhirubhai Ambani is a leader.
because in their respective fields, in their respective areas, from religion to spirituality to cricket to anything, wherever they are able to influence behavior of any single individual, then for that single individual, the person who is influencing the behavior is a leader and whose behavior is being influenced is a follower. तो ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के नेता हैं, अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने नेतृत्व किया है, अपने अपने क्षेत्र में इनके अनुयायी हैं। वो धर्म हो, अध्यात्म हो, क्रिकेट हो, कला हो, मनोरंजन हो, साहित्य हो, व्यापार हो, वाणिज्य हो, जहाँ भी कहीं जिस भी क्षेत्र में यदि किसी का व्यवहार प्रभावित करने की क्षमता किसी भी व्यक्ति के पास है, तो जो व्यक्ति व्यवहार को प्रभावित कर रहा है वह नेता है, और जिसका व्यवहार प्रभावित हो रहा है वह नेतृत्व है, अनुयायी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोहम्मद साहब, जिनको गुजरे इतने समय हो गए, लेकिन आज भी उनके लाखों करोड़ों अनुयायी पूरे दुनिया भर में हैं। भगवान राम के अनुयायी हैं, इस तरह से सचिन तेंदुलकर के अनुयायी हैं, इस तरह से धीरू भाई अंबानी के अनुयायी हैं उनके अपने क्षेत्र में। तो अगर वो हमारा व्यवहार प्रभावित नहीं कर रहे तो वो हमारे लिए नेता नहीं है, लेकिन अगर वो हमारा व्यवहार प्रभावित कर रहे हैं तो जिस क्षेत्र में हम हैं वो हमारे लिए उस क्षेत्र के नेता हैं और हम उनके अनुयायी हैं। यानी आज पहली बात ये समझनी है, लीडर is one person who has the ability to influence behavior of others in whatever field, and therefore every such person who has the ability to influence behavior of others in any field in that particular walk of life, that man is a leader, and for that person whose behavior is getting influenced is a follower of that leader. तो जिस भी क्षेत्र में हम उसका व्यवहार प्रभावित कर पा रहे हैं वह उस क्षेत्र का नेता है, और जिसका व्यवहार प्रभावित हो रहा है वह उस क्षेत्र का अनुयायी है। और इसलिए क्या है कि नेता अनुयायी जो संबंध हैं ये समानता के संबंध नहीं, ये मित्रता के संबंध नहीं, क्योंकि नेता अपने अनुयायी के लिए एक ऊंचे स्थान पर है और अनुयायी अपने नेता के लिए उससे नीचे के स्थान पर है। और इस वजह से एक अनुयायी अपने नेता को हमेशा अपने से अधिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा देता है, और वो अपने नेता में अनेक रूप देखता है। एक नेता अपने अनुयायी के लिए मित्र है, मार्गदर्शक है, दर्शन शास्त्री है, विचारक है, प्रेरक है, अभिकर्ता है, एक दृष्टांत प्रस्तुत करने वाला है, उसकी समस्या का समाधान खोजने वाला है, या कुछ भी ऐसा है जो कि अनुयायी को एक मानसिक संतोष देता है, जो कि अनुयायी को यह अनुभव दिलाता है कि उसकी जो भी समस्याएं हैं, कष्ट हैं, पीड़ा है, तकलीफ है, वह यह व्यक्ति दूर कर सकता है। और इसलिए वो व्यक्ति जिसके मानसिक, शारीरिक, आर्थिक आदान प्रदान होते हैं, जिस व्यक्ति के साथ आदान प्रदान आवश्यक है, और जो आदान प्रदान होता है वो नेता और अनुयायी के बीच होता है। वो आदान प्रदान मानसिक हो सकता है, वो आदान प्रदान शारीरिक हो सकता है, वो आदान प्रदान भौतिक हो सकता है, वो आदान प्रदान इन सब का स्वरूप हो सकता है, या इनसे कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन आदान प्रदान होना आवश्यक है, और आदान प्रदान के साथ संतुष्टि का होना आवश्यक है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन अ लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप? दैट देयर इज एन exchange, that exchange mental, physical, financial, economic, all of them, because a leader is a friend, a philosopher, a guide, a lover, a teacher, a preacher. A leader has many forms and manifestations, many relationships with his followers, but this relationship is not based upon friendship. This relationship is not based upon treatment of equality, because the relationship is distributed on an uneven platform, where the uneven distribution of relationship, the leader is at a higher stage and a follower is at a lower stage. Follower will never claim the treatment of equality with the leader. ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि अगर
नेता आपको अपना मित्र समझता है तो ये नेता का बड़प्पन है, ये नेता का गुण है, अपने अनुयायी के निकट आने का, उसको अपना मित्र बताने का, उसके साथ अपना रिश्ता बनाने का। लेकिन अनुयायी उसे यह मान ले कि उसी के बराबर है, ये समकक्ष है, तो नेता अनुयायी संबंध नहीं रह जाएगा। एंड फॉर दैट मोमेंट, वेन एवर दैट एक्सचेंज और satisfaction ceases to exist, leader follower relationship ceases to exist। वह जिस भी क्षण आदान प्रदान बंद हो जाए, संतोष बंद हो जाए, जो संतुष्टि मिल रही है वह अस्तित्व में न रह जाए, उसी दिन से नेता अनुयायी संबंध बदल जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी मेरे कमरे में साईं बाबा की एक प्रतिमा है, मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ, साईं मेरे गुरु हैं। क्यों मैं उन्हें गुरु मानता हूँ? क्योंकि साईं मेरी हर बात सुनते हैं। साईं जिनके लिए मैं उनका अनुयायी हूँ, मैं जिस भी दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा में रहता हूँ वो उसे दूर कर देता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं उनसे मांगता हूँ, वो मुझे देते हैं। मैं उनका शिष्य, उनका भक्त, उनका अनुयायी हूँ। वे मेरे गुरु, मेरे भगवान हैं, मेरे मित्र हैं। मैं जैसे अपने दोस्त से बात करता हूँ, मैं वैसे उनसे बात करता हूँ। जैसे मैं अपनी दुख तकलीफें व्यक्त करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ और वो मेरी सुनते हैं। अगर किसी एक क्षण मुझे ऐसा लग जाए कि मैं उनसे मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कहता हूँ, लेकिन वो मेरी नहीं सुनते, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अब मेरी तकलीफें तो बढ़ती जा रही हैं, मेरी समस्याओं का अंत नहीं हो रहा है, उसी दिन मैं तस्वीर हटा करके रख दूँगा, क्योंकि मेरा वो आदान प्रदान, वो संतोष समाप्त हो गया। तो जो एक नेता होता है वो अपने अनुयायी के लिए अनेक रूपों में होता है, अनेक अवतार में होता है, अनेक संबंधों में होता है, अनेक रिश्तों में होता है। उसका कोई एक रंग नहीं होता, उसका कोई एक रूप नहीं होता, उसका कोई एक प्रकार नहीं होता, उसका कोई एक आकार नहीं होता। वो सब होता है। वो निराकार है, वह निर्गुण है, वो साकार है, वो सगुण है। लेकिन वो है अंततः इसी तथ्य पर आधारित कि वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है और हमें किसी उद्देश्य के लिए प्रेरित करता है, हमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संतुष्टि प्रदान करता है। जिस भी क्षेत्र में यह है वह उस क्षेत्र का नेता है। और इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि प्रेम और आदर में अंतर होता है। जिसका हम सम्मान करते हैं, हम चाहते हैं सारी दुनिया उसका सम्मान करे, लेकिन जिसको हम प्यार करते हैं, हम नहीं चाहते सारी दुनिया उसको प्यार करे। तो प्यार में एकाधिकार होता है। प्यार में सिर्फ अपना भला लेने की भावना होती है। प्यार में यह सिर्फ मेरा है, उसे बांटा नहीं जा सकता। लेकिन सम्मान में यह भाव होता है कि नहीं, जितना बांटे, जितना लोग और जुड़े, जितना और लोग सम्मान दें। इसलिए देयर इज अ सेंस ऑफ possessiveness in love, but there is a sense of distribution in respect. You never want to share your love with anybody, but you want to share your respect with everyone who comes in your contact. और इसलिए नेता का संबंध जो है अपने अनुयायी के लिए, वो उसी सम्मान का होता है। तो अगर राह चलते, क्लास से बाहर आते जाते मैंने इनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, और भाई क्या हाल चाल है दोस्त, पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन ये मुझे बोला, ओ त्रिपाठी ठीक हो। ये तो मेरा बड़प्पन है कि मैंने इनको अपना दोस्त कहा, इनके कंधे पे हाथ रखा, इनको गले लगाया, क्योंकि मैंने इनको अपना प्रेम प्रकट किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुझको अपने बराबर समझ करके वैसा व्यवहार करें जैसा ये अपने मित्र के साथ व्यवहार करते हैं। यहीं पर यह संबंध समानता का संबंध नहीं रह जाता है। और इसलिए नेतृत्व पर बड़े शोध हुए।
अमेरिका में, यूरोप में, number of universities and colleges and research institutions were founded to exclusively research upon leadership and its behavior and the qualities associated with leadership. शुरू में यह माना जाता था, एक थियरी दी गई थी कि नेता तो जन्मजात होता है, युगों युगों में होता है, गुदड़ी का लाल होता है, नेतृत्व का गुण किसी में पैदा नहीं किया जा सकता. So it was an inborn theory that a leader is born, it is something divine, it is a virtue bestowed upon a person by the God Almighty. Leadership is something which cannot be inculcated. Leadership is something which cannot be created. Either you have it or you don't have it. बाद में इस थियरी को ऑब्सोलीट कर दिया गया, इसका खंडन मंडन हुआ, इसमें बताया गया नहीं ऐसा नहीं है. फिर आई एक ट्रेट थियरी, गुणमूलक सिद्धांत, that a leader has certain essential traits, mental traits, moral traits, physical traits. कि नेता तो होता है जिसमें कुछ गुण होते हैं, मानसिक गुण, शारीरिक गुण, नैतिक गुण. इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया. एक फिजिकल थियरी आई कि नेता वो है जो बड़े लंबे चौड़े कद काठी का होगा, बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, उसका एक अपना आभा मंडल होगा, उसकी वाणी में ओज होगा, वो यहाँ से बोलेगा तो कपूरथला पे सुनाई देगा, और कम से कम 6 फुट 8 फुट लंबा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा. उसके एक फिजिकल फीचर्स बना दिए गए. So physical traits were added to the success or failure of leadership. लेकिन महात्मा गांधी इतने बड़े, छोटे से कद के, देखने सुनने में बहुत आकर्षक व्यक्तित्व नहीं था, बहुत खराब बोलते थे. He was a very poor orator. महात्मा गांधी की अगर आप कभी ओरेटरी स्किल्स के बारे में पढ़ें तो ही वॉज अ पैथेटिक ओरेटर. वो अगर इस क्लास में आए 5 मिनट बोल दें, जैसे लगेगा इंसोम्निया हो गया, सब बेहोश हो जाएंगे, लगेगा क्या हो गया. और कृषकाय दुबले पतले थे, छोटे से कद के थे. नेपोलियन बोनापार्ट इतना बड़ा था, 5 फुट का था, इतना बड़ा लीडर हुआ. एक ज़माने में जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी, ये अपने लोगों के लिए लीडर थे. जर्मनी में एक आवाज पर हिटलर की लाखों लोग उतर आते थे मैदान पर. ऐसा आसानी से थोड़ी उसने शासन किया, यूं ही. तो जिन भी लोगों का व्यवहार उस समय हिटलर ने जर्मनी में प्रभावित किया था, हिटलर उन लोगों के लिए महानतम नेता था और उसके लाखों करोड़ों अनुयायी थे. तब उसने शासन किया. जर्मनी से लेकर पूरी दुनिया को उसने जीतने का मंसूबा बांधा, क्योंकि उसके पास ऐसा विश्वास था कि लाखों करोड़ों लोग हैं, और थे. आप जर्मनी का इतिहास पढ़िए. लेकिन अब जब आप हिटलर के बारे में, अगर आपने हिटलर की फ़ोटो नहीं देखी है, हिटलर को देखा नहीं है, इमेज उसकी नहीं है, अगर आपको हिटलर कहा जाता है, हिटलर के बारे में बोला जाता है, कोई कहता है तो हिटलर है, यानी वन हु इज़ वेरी क्रूअल, वेरी एडमेंट, वेरी सैनिक, यानी जो एक बहुत निर्मम, निष्ठुर, क्रूर, सनकी, तानाशाह टाइप व्यक्ति है, वो हिटलर होगा. तो अगर खाली हिटलर के बारे में आपने सुन रखा है, उसको देखा नहीं है, तो सुनने पर तो ऐसा लगेगा कि अगर हिटलर सामने आ जाए तो उसको देख के ही आदमी डर के मारे बेहोश हो जाएगा. लेकिन अगर हिटलर सामने आ जाए, आपको पता ना हो ये हिटलर है, तो 2 तमाचा आप ही मार रहे, हट चार्ली चैपलिन.
यानी हिटलर को पर्सनैलिटी में ऐसा देख करके बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं हो जाएंगे आप। तो ईदी अमीन, ये अपने अपने प्रभाकरण लिट्टे का इतना बड़ा लीडर, तो जिसका भी बिहेवियर इन्फ्लुएंस किए उसके लिए लीडर, हमारे आपके लिए नहीं। तो जो आपका लीडर हो मेरा हो ज़रूरी नहीं, जो मेरा लीडर हो वो आपके लिए हो ये ज़रूरी नहीं है। हम जिसके फॉलोअर हैं वो हमारा लीडर है, आप जिसके फॉलोअर हैं वो आपका लीडर है। अंग्रेज़ों ने पूरा रेजिमेंटेशन इंडियन आर्मी का इसी फॉल्स थियरी पर किया। आप अगर इंडियन आर्मी का इतिहास पढ़ेंगे, इफ यू विल गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्मी, यू विल फाइंड द एंटायर रेजिमेंटेशन डन बाय द ब्रिटिश फोर्सेस एट दैट टाइम इन इंडियन आर्मी, दैट वाज क्रिएटेड ऑन फॉल्सहुड। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा साहब हिंदुस्तान में कुछ मार्शल रेसेस हैं, जिंदा कौमें, बहादुर लोग हैं, ये बने ही हैं राज करने के लिए, हुकूमत करने के लिए, शासन करने के लिए। ये बड़े जाबाज लोग होते हैं, ये जान पर खेलते हैं, जान लेते हैं और जान देते हैं, यही इनका काम है। इसलिए आप देखिए पूरा रेजिमेंटेशन, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, पनिया रेजिमेंट सुना है, ब्राह्मण रेजिमेंट, पंडित रेजिमेंट नहीं सुना ना? क्योंकि उन्होंने कहा कि सिख, गोरखा, मराठा, राजपूत ये मार्शल रेसेस हैं, ये बनी हैं जंग लड़ने के लिए, हुकूमत करने के लिए, लोगों पर शासन करने के लिए। इन्होंने कहा कि आप देखें राजपूतों का इतिहास, वो तो कहते हैं अगर 16 बरस से ज्यादा क्षत्रिय जिंदा रह गया तो फिर क्षत्रिय किस बात का? 16 प्लस नहीं होना चाहिए, इतने में मर जाना चाहिए उसको, लड़ाई में सर काट देना चाहिए। राणा सांगा, महाराणा प्रताप, ये बड़ी बड़ी मूंछ और ये बड़ी वैलर। तो उन्होंने पूरी आर्मी क्रिएट की इस तरह से। आप खुद भी देखें, अगर आपको कोई बताए कैप्टन शमशेर सिंह तो लगेगा अरे वाकई कैप्टन है, और कर्नल रमापति दुबे तो आप हैं कौन सा कर्नल है? कर्नल जंग बहादुर सिंह, ये लगा के सीधे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से चला आ रहा है। और कर्नल माता बदल तिवारी, और साहब ब्रिगेडियर सियाराम गुप्ता आए थे। अब ब्रिगेडियर सियाराम गुप्ता कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये थ्योरी भी डिस्कार्ड हो गई। इथियोपिया ने ब्रिटेन को हरा दिया। एक से एक जिनको कमज़ोर माना जाता था, समाज में समझा जाता था कि ये तो लड़ भिड़ नहीं सकते, इनके नेतृत्व के गुण हो ही नहीं सकते, महान नेता पैदा। डॉक्टर आम्बेडकर, तो फिर दूसरी थियरीज आई। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी एंड मिशिगन यूनिवर्सिटी, अमेरिका में इन दो यूनिवर्सिटीज़ ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लीडरशिप पर पूरी दुनिया में रिसर्च किया और उन्होंने अपने समय के 90 आउटस्टैंडिंग लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड उनको चुना और उनकी पर्सनल और सोशल लाइफ पर बड़ी इंटेंसिव स्टडी किया और फिर कुछ फैक्टर्स निकाले और तब बताया कि लीडरशिप क्वालिटीज़ किसे कहते हैं। आज 2019 में लीडरशिप के मायने बिल्कुल बदल चुके हैं। अब जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव थियरीज थी उनकी जगह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, कम्युनिटी लीडरशिप, लीडरशिप के कई नए सिद्धांत आ चुके हैं। टुडे इन माय ओपिनियन अ लीडर इज नॉट वन
who has authority, power and something like that. A leader is one who empowers other. More a person has the ability to influence and empower others, greater is the leadership. जो दूसरों का सशक्तिकरण कर सके वह कुशल नेता है, सफल नेता है। जो अपना सशक्तिकरण करे वह नहीं। और इसलिए अगर हम नेतृत्व के प्रतिमानों पर चर्चा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये कई रूप रंग का है, कई प्रकार का है, और पहले के सिद्धांतों की तुलना में अब सिद्धांत बहुत बदल चुके हैं। अभी भी उसमें बहुत शोध हो रहा है, बड़ा रिसर्च, टेक्निकल स्टडीज़ हो रही हैं, केस स्टडीज़ हो रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ये काम ज़्यादा हुआ, ख़ास तौर से 1945 के बाद से, और 1960s, 70s, फिर 90s, और अब लीडरशिप की तमाम नई थियरीज आ चुकी हैं। इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इज दैट वेरी क्लियर? यू कैन राइट एज सच। A leader is one who has the ability to influence behavior of others voluntarily in a given situation to realize a particular goal. स्वेच्छा से किसी दी हुई परिस्थिति में दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता नेतृत्व कहलाती है, ताकि एक निश्चित उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। Hence it can be expressed in an equation as follows. अतः एक समीकरण के रूप में इसे निम्नमत व्यक्त किया जा सकता है। where L is equal to leadership, capital L, नेतृत्व, F functional relation, कार्यात्मक संबंध, स्मॉल एल लीडर, नेता, स्मॉल एफ फॉलोअर, अनुयायी, स्मॉल जी गोल, उद्देश्य, एंड एस सिचुएशन, परिस्थिति। Hence to lead, to guide, to conduct, to direct, to proceed, to motivate, and to act as an exemplar and trend setter. Is all into one, that is leadership. अतः एक प्रेरक, एक मार्गदर्शक,
एक अभिकर्ता, एक दृष्टांतकर्ता। यह सभी कुछ जब एक में सम्मिलित होता है तो उसे नेतृत्व कहते हैं। Thus leadership is an influential increment. Leadership is an influential increment. अतः नेतृत्व एक संवृद्धकारी प्रतिमान है। One, it is a relationship between two or more people, यह दो या अधिक लोगों के बीच का संबंध है। In which power and influence are unevenly distributed. जिसमें सत्ता और प्रभाव का असमान वितरण पाया जाता है। Next, it is a relationship in which status, authority, respect is more inclined towards leader and less towards the follower. यह एक ऐसा संबंध है जिसमें सम्मान, प्रतिष्ठा, मान्यता इत्यादि नेता के पक्ष में अधिक और अनुयायी के पक्ष में कम केंद्रित है। Thus, a leader-follower relationship is not a relation of equality. अतः नेता अनुयायी संबंध समानता का संबंध नहीं है। Next, leadership implies that followers must consent to being influenced. नेतृत्व का अर्थ है कि अनुयायी का व्यवहार स्वेच्छा से प्रभावित हो रहा है। Next, in a leader-follower relationship, there is an exchange that always take place. नेता अनुयायी संबंध में सदैव एक आदान प्रदान होता है। That exchange can be mental, physical, economic, one or all। यह आदान प्रदान शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब कुछ या इनमें से कोई एक हो सकता है। Hence, a leader-follower relationship has many shades, many hues, many colors, many forms and manifestations. अतः नेता अनुयायी संबंध कई रंग, कई रूप, कई आकार और प्रकार के होते हैं।
टू अ फॉलोअर अ लीडर इज अ लवर। एक अनुयायी के लिए उसका नेतृत्वकर्ता प्रेमी है। इज अ टीचर, शिक्षक है। इज अ प्रीचर, उपदेशक है। इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। एक मित्र, मार्गदर्शक और दर्शन शास्त्री है। नेक्स्ट, हेंस अ लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूअम। अतः नेतृत्व एक निरंतरता है। टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, जिसमें वह व्यवहार को प्रभावित करता है। वॉट एवर दैट फील्ड में बी, वह क्षेत्र कुछ भी हो सकता है। एजुकेशन, शिक्षा, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, आर्ट्स, कला, रिलीजन, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, बिजनेस, व्यापार, और इवन पॉलिटिक्स, और यहां तक राजनीति भी। नेक्स्ट, हेंस अ लीडर मोटिवेट्स। अतः नेता अभिप्रेरणा देता है। ट्रांसफॉर्म्स एस्पिरेशंस इनटू एक्शंस, आकांक्षाओं को कार्य में बदल देता है। एंड चेंजेस डिजायर इनटू अचीवमेंट, तथा इच्छाओं को उपलब्धियों में परिवर्तित कर देता है। चेंज, देयरफॉर, इसलिए 1, अ लीडर इज नॉट अ पोस्ट। नेता कोई पद नहीं है। Neither it is a position nor a status, न यह स्थिति, पद स्थिति या प्रास्थिति है। It is fundamentally ability to influence the behavior, मूलतः यह व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता है। एंड देयरफॉर, और इसलिए लीडरशिप इज व्हाट अ पर्सन डज, नॉट समथिंग ही हैज। व्हाट अ पर्सन डज, नॉट समथिंग ही हैज। अतः नेतृत्वकर्ता के पास क्या है महत्वपूर्ण नहीं है, वह क्या करता है यह महत्वपूर्ण है। कोई शक, कोई सवाल, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? तो जब आप लीडर की बात करते हैं तो लीडर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर फील्ड, वन स्पेसिफिक एरिया। लीडर इज फाउंड इन एवरी फील्ड, इन एनी एरिया। तो जो भी जहां भी आपके जीवन में, हमारे जीवन में हमको प्रभावित करता है, वह उस क्षण, उस क्षेत्र, उस कार्य के लिए हमारा नेता होता है। इज दैट वेरी क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट।
In organization and management, especially in public administration, संगठन और प्रबंधन के क्षेत्र में, विशेषकर लोक प्रशासन में, leadership is the most needed and essential quality. नेतृत्व सर्वाधिक और वांछित आवश्यक गुण है। Because resources can be managed, क्योंकि संसाधनों का तो प्रबंधन हो सकता है, technologies can be substandard or advanced, प्रौद्योगिकी अवनत या उन्नत हो सकती है, but leadership is rarest of the rare virtue. किंतु नेतृत्व दुर्लभतम से दुर्लभ गुण है। Which can sail or sink any organization, जो किसी भी संगठन को पार लगा सकता है या डुबो सकता है। Hence, every organization looks for leadership qualities. अतः प्रत्येक संगठन नेतृत्व के गुणों की खोज करता है। And especially public administration prefers outstanding leaders in their own field, in their own right. और विशेषकर लोक प्रशासन में उत्कृष्ट प्रशासकों की नहीं अपितु नेतृत्वकर्ताओं की आवश्यकता है। Daniel Katz and Robert Kahn डेनियल कार्ट्स और रॉबर्ट कान के अनुसार in any organization leadership is needed for the following reasons. किसी भी संगठन में नेतृत्व की आवश्यकता निम्नलिखित गुणों के कारण होती है। One, it fulfills the incompleteness of organizational design. It fulfills the incompleteness of organizational design. यह संगठनात्मक विन्यास की अपूर्णता को भर देता है। Two, it prepares the workforce for ever-changing environment conditions. It prepares the workforce for ever-changing environment conditions. यह कार्यबल को लगातार बदलती हुई परिवर्तनशील
परिस्थितियों के अनुकूल बना देता है। नेक्स्ट, it is required for the internal dynamics of the organization. It is required for the internal dynamics of the organization. यह संगठन की आंतरिक गत्यात्मकता के लिए आवश्यक है। And the last, it is needed for the nature of human membership in the organization. It is needed for the nature of human membership in the organization. यह संगठन में मानव सदस्यों की संबंधता के लिए आवश्यक है। Change. Crash and Crutchfield ने कहा है, have stated that in administration and management, प्रशासन और प्रबंधन में a leader has to primarily perform the following functions. नेता को अनिवार्यतः निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। 1. Related to organizational goals, संगठनात्मक लक्ष्य से संबंधित। ए, पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण। बी, प्लानिंग, नियोजन। सी, इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन। Next, related to the operations of the organization, संगठन के कार्य संचालन के संबंध में। ए, एज एन एक्सपर्ट, एक विशेषज्ञ के रूप में। बी, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज ग्रुप, अपने समूह के प्रतिनिधि के रूप में। सी, एज अ कंट्रोलर ऑफ रिलेशनशिप, संबंधों के नियंत्रणकर्ता के रूप में। एंड द थर्ड, रिलेटेड टू ग्रुप और फॉलोअर्स ही रिप्रेजेंट्स, वह समूह और अनुयायी जिनका वह नेता है के संबंध में। ए, एज एन एग्जाम्पलर एंड ट्रेंड सेटर, उदाहरणकर्ता और परंपरा अधिष्ठाता के रूप में। बी, एज अ सिंबल ऑफ द ग्रुप, समूह के प्रतीक के रूप में।
एंड द लास्ट, एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड डिसीजन मेकर। समस्या के समाधान और निर्णयकर्ता के रूप में।